Hello everyone, welcome back to my channel and Anatomy Me on your fingertips. I am again here to teach you another video or another topic, and our today's topic is brachial plexus, which is really important in anatomy or upper limb, and this is the most important topic or favorite topic for the exams. Okay, so be attentive and be careful. I hope you all are fine, and if you didn't see my previous videos, प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोज़. लिंक ऊपर पॉपअप हो रहा होगा एक्सीला एंड अदर वीडियोज़ का. आप जाइए और जाके चेक करिए. अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें एंड अपने और दोस्तों को शेयर करें. एंड अगर आपको कुछ सजेशन देना है मेरी वीडियोज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके मेरी वीडियोज़ से रिलेटेड, सो यू कैन कमेंट मी डाउन. ओके, आई विल श्योरली रिप्लाई यू. Okay guys, so without wasting any time, let's get started with the video. Today's topic is brachial plexus. So what does the plexus means? Plexus is network of nerves formed by anterior rami. Plexus means network of nerve. Basically plexus means network of nerves. Okay, and brachial I already said you that brachial come from brachium. Brachium means arm. Okay, so it is related with the upper limb. Okay, so brachial plexus, network of nerves in the arm or upper limb. Okay, so network of nerves formed by anterior rami of, anterior rami means each nerve has two part. एक नर्व जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो रूट्स देती है. एक होती है हमारी वेंट्रल रूट, दूसरी होती है हमारी डोर्सल रूट. वेंट्रल रूट को हम एंटीरियर रेमाई भी बोलते हैं एंड डोर्सल रूट को पोस्टीरियर रेमाई भी बोलते हैं. तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो नर्व्स है वो कहाँ से निकल रही है? एंटीरियर रेमाई. ओके, and as you all know we have cervical vertebrae, thoracic vertebrae and lumbar vertebrae, sacral vertebrae. So we have anterior rami of C5 to T1. okay, C5, C6, C7, C8 and T1. ठीक है, जो भी इन सब वर्टिब्रा से हमारी नर्व्स निकल रही होगी उनकी एंटीरियर रेमाई क्या फॉर्म करेगी? ब्रेकियल प्लेक्सिस. And what's the position of brachial plexus? It extend from spinal cord से extend होके through cervico-axillary canal in neck. In neck we have one canal which is known as the cervico-axillary canal. Cervico means cervical यानी कि neck और head region, axillary means axilla और the armpit region and the canal. ओके, सो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल इन नेक, वहाँ से ये एक्सटेंड होती है थ्रू सर्वाइको एक्सिलरी नेक के अंदर जाती है ओवर द फर्स्ट रिब इनटू द आर्मपिट. और देन हमारे इसको सप्लाई, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसको सप्लाई किसको करना है? अपर लिम्ब को. तो ये कहाँ जाएगी? फर्स्ट रिब के ऊपर से होकर आर्मपिट के थ्रू हमारा अपर लिम्ब में चली जाएगी एंड वहाँ पर जाके हमारे जितने भी बोन्स हैं, मसल्स हैं, उन सबको जाके सप्लाई करेगी. ओके, सो in the plexus we have 5 things. okay, first one is root, trunk, division, cords and branches. okay, roots, trunk, division, cord and branches. Here is one mnemonic. एक mnemonic है, इसको आप easily याद कर सकते हैं. Really tired, drink coffee buddy. okay, so really means root, R from root, T for trunk, D for division, C for cord and B for branches. okay, trunks will going to further divide into anterior and posterior. okay, anterior and posterior part. okay, and the anterior and posterior will make your division part. okay, root will form trunk will form division will form cords and cords will form branches. root से trunk आएगा, trunk से division, फिर cords, फिर branches. okay, from above to down it will follow this order. okay, like this. so कौन कौन सी हमारी इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती है? C5 से लेके T1 की एंटीरियर रेमाई. ओके, सो C5, C6, C7, C8 एंड T1. तो हमने ये सब राइट कर लिया C5 से लेकर T1 को एक वर्टिकल ऑर्डर में. अब क्या होता है, जो C5 और C6 की एंटीरियर रेमाई है वो हमारी जाके क्या बनाती है? और रूट है. C5 और C6 क्या है? C7, C8, T1 क्या है? रूट्स है. ओके, दीज आर रूट्स. सो रूट्स के बाद हमारा क्या बनता है? अभी हमने पढ़ा ट्रंक्स. सो C5 और C6 मिलके हमारा बनाता है अपर ट्रंक एंड C7 विल अलोन फॉर्म, अकेले बनाता है हमारा क्या? मिडल ट्रंक. एंड C8 एंड T1 विल फॉर्म लोअर ट्रंक. ऊपर के दो मिलके अपर ट्रंक, नीचे के दो मिलके लोअर ट्रंक एंड बीच वाला इज द मिडल ट्रंक. ओके, अब ट्रंक्स के बाद क्या आता है? डिवीजन.
डिवीजन। अपर ट्रंक जो है वो आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। मिडल वन भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड द लोअर वन विल ऑल्सो डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दोनों में डिवाइड होता है। एंड हमारे डिविजन्स भी कंप्लीट हो गए। देन डिवीजन विल फॉर्म द कोड्स। कोड्स कैसे बनती है? एंड कोड्स विल प्ले द मेजर रोल इन द पोजिशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी विच वी विल सी इन लेटर क्लासेस. ओके, so see carefully here, I will also show this in the diagram so you can understand better. Okay, both ये अपर ट्रंक की जो एंटीरियर है, एंटीरियर डिवीजन है, और मिडल ट्रंक की जो एंटीरियर डिवीजन है, दोनों मिलके हमारी बनाती है लेटरल कॉर्ड. क्या बनाती है? लेटरल कॉर्ड. और हमारी जो अभी हमारी किसकी एंटीरियर बची है? सिर्फ लोअर ट्रंक की. लोअर ट्रंक की एंटीरियर हमारी बनाती है मीडियल कॉर्ड. और जो तीनों की जो हमारी क्या बोलते हैं पोस्टीरियर है, अपर ट्रंक की पोस्टीरियर, मिडल ट्रंक की पोस्टीरियर, लोअर ट्रंक की पोस्टीरियर जो डिविजन्स है वो हमारी तीनों मिलके एक साथ क्या बनाती है? पोस्टीरियर कॉर्ड. ओके, अभी हम पढ़ते हैं इसका मतलब फंक्शन क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं. ऑल द थ्री कोड्स लाई अबव फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. तीनों की तीनों कोड जो हैं, जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी होती है, कंसिडर दिस लाइक अ एक्सिलरी आर्टरी. एक्सिलरी आर्टरी है तो तीनों की तीनों कॉर्ड जो हैं, लेटरल कॉर्ड, मिडल कॉर्ड एंड दी पोस्टीरियर कॉर्ड जो है उसके ऊपर से पास होंगी. ओके, मीडियल कॉर्ड. मीडियल कॉर्ड इज इक्वल टू मीडियल साइड ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. अब क्या होता है, ये हमारी फर्स्ट पार्ट एक्सिलरी आर्टरी, आई विल एक्सप्लेन यू इन द शॉर्ट राइट नाउ. एक्सिलरी आर्टरी हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 के तीनों कॉर्ड पार्ट 1 को ऊपर से क्रॉस कर देती हैं. ओके, एंड जो हमारी तीनों कॉर्ड होती हैं वो हमारे सेकेंड पार्ट को कैसे क्रॉस करती हैं? मीडियल वाली जो कॉर्ड है वो मीडियल साइड पे जाएगी, लेटरल वाली कॉर्ड लेटरल साइड पे जाएगी, एंड जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो पोस्टीरियर साइड पे जाएगी. ओके, सो this is also one explanatory more detailed diagram, or you can say flow chart to explain the brachial plexus. Now we will see each and every root arises from the brachial plexus or each and every nerve of the brachial plexus. Okay, so these are the roots C5, C6, C7, C8 and T1. These are the roots of the brachial plexus. अब क्या होता है, हम देखते हैं कि डायरेक्ट रूट से कौन कौन सी नर्व्स जो हैं वो अराइज होती है. अकेली C5 से अकेली C5 रूट से हमारी एक नर्व अराइज होती है जिसको बोलते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व. डॉर्सल स्कैपुलर नर्व मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, मसल वाली वीडियो में, पार्ट 1 में और मे बी पार्ट 2 में, कि रोम्बॉइड मेजर और माइनर मसल्स को कौन सी मसल नर्व सप्लाई करती है? डॉर्सल स्कैपुलर नर्व. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं. ओके, सो वो जो नर्व है वो कहाँ से निकलती है? C5 रूट से निकलती है डायरेक्टली. ठीक है, विदाउट एनी एसोसिएशन ऑफ एनी अदर रूट. ओके, अब क्या होता है, C5, C6, C7 तीनों मिलकर हमारी क्या बनाते हैं? C5, C6, C7 हमारी मिलके बनाते हैं सेरेटस एंटीरियर. एक मसल होती है, उसके पास हमारी वो जाती है, नर्व जाती है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व. क्या बोलते हैं? लॉन्ग थोरेसिक नर्व. वो किस किस रूट से निकलती है? C5, C6, C7 तीनों मिलके एक नर्व बनाते हैं जिसको बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व और नर्व टू दी सेरेटस एंटीरियर. ये आप नोट कर सकते हैं. सेरेटस एंटीरियर की नर्व का नाम है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कि क्या उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? अगर कोई आपसे पूछता है रूट वैल्यू क्या होगी, तो हम किस किस से मिलकर बनी है, तो हमें क्या लिखना है? C5, C6 एंड C7. ओके, एंड वन मोर ब्रांच ऑल्सो केम फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द रूट्स आर इज ब्रांचेस टू स्कॉलाई एंड लॉन्गर कॉलाई मसल्स. ओके, ये कहाँ से निकल रहे हैं? C5, C6, C7 एंड C8. डायरेक्टली इन चारों को मिलके एक नर्व बनाई जाती है जो कि हमारी किसको सप्लाई करेगी? स्कॉलाई एंड लॉन्गर कॉलाई मसल, जो कि हमारे हेड और नेक रीजन में होती हैं. ओके, अब क्या होता है, रूट्स आके जाके क्या बनाती है? हमारी ट्रंक. C5 और C6 मिलके बनाती है अपर ट्रंक, C7 बनाती है हमारी मिडल ट्रंक एंड C8 और T1 बनाती है हमारी लोअर ट्रंक. तो हमने अभी देखा कि रूट से डायरेक्टली कौन सी ब्रांचेस निकली थी. अब हम देखेंगे कि ट्रंक से कौन सी ब्रांचेस निकलती है. तो मिडल और लोअर ट्रंक से कोई ब्रांचेस नहीं निकलती हैं डायरेक्टली. ओके, सिर्फ अपर ट्रंक से हमारी दो ब्रांचेस निकलती है. एक को बोलते हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व. ओके, सुप्रास्कैपुलर नर्व एज द नेम सजेस्ट किसको सप्लाई करेगी? सुप्रास्कैपुलर नर्व को. सेकंड मसल होती है हमारी, सेकंड नर्व होती है जो कि डायरेक्ट अपर ट्रंक से निकलती है, वो होती है नर्व टू सबक्लेवियस. सबक्लेवियस हमारी क्लेविकल की मसल है जिसको कौन सप्लाई करती है? नर्व टू सबक्लेवियस विच अराइजेस फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. ओके, सो
ट्रंक्स अभी हमारा ख़त्म हो गया, मिडल और लोअर तो कोई फॉर्म करती ही नहीं है। तो ट्रंक्स के बाद अब हमारा आता है डिविजन्स। ओके, डिविजन्स जितने भी ट्रंक होंगे दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं आगे जाके, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, लोअर भी सेम, एंटीरियर पोस्टीरियर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अपर ट्रंक और मिडल ट्रंक के एंटीरियर होता है वो हमारा मिलके बनाता है लेटरल कॉर्ड। क्या बनाता है? लेटरल कॉर्ड। तो इसकी रूट वैल्यू अगर हमें देखनी हो तो क्या होगी? एंटीरियर। एंटीरियर हमारी किससे निकल रही है? अगर हम पीछे जाके देखें C5 और C6 भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और हमने मिडल ट्रंक का भी एंटीरियर लिया है तो C7 भी हमारा इन्वॉल्व है। तो लेटरल कॉर्ड की अगर हमसे कोई पूछे कि रूट वैल्यू क्या होती है तो आप क्या लिखेंगे? C5, C6 एंड C7। ओके, अब क्या होता है, तीनों के जो पोस्टीरियर पार्ट होते हैं, तीनों के जो पोस्टीरियर डिविजन्स निकल रही हैं वो तीनों मिलके क्या बनाएंगी? पोस्टीरियर कॉर्ड। ओके, तीनों की पोस्टीरियर, ये देखो ये वाली पोस्टीरियर हमारी अपर ट्रंक की, मिडल ट्रंक एंड यदि लोअर ट्रंक की, तीनों मिलकर हमारी क्या बना रही है? मीडियल कॉर्ड। ओके, अब क्या होती है हमारी, क्या बची? दो हमारी एंटीरियर खत्म होगी जो मिलकर हमारी लेटरल कॉर्ड बना रही है, तीनों पोस्टीरियर खत्म होगी जो हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड बना रही है। बची क्या? सिर्फ लोअर ट्रंक की एंटीरियर जो कि हमारी क्या बनाएगी? मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ये हमारी तीन मेन कॉर्ड होती है जो कि अपर क्या बोलते हैं, स्कैपुला को और बाकी अदर रीजन्स को जाके सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉर्ड्स के बाद आती है हमारी ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस। लेटरल कॉर्ड की हमारी तीन ब्रांचेस होती है, L, M, L। क्या होती है? L, M एंड L। L इज इक्वल टू, लेटरल कॉर्ड हमारी क्या बनाती है? तीन ब्रांचेस देती है, L, M एंड L। L इज इक्वल टू, फर्स्ट L का क्या मतलब है? लेटरल पेक्टोरल नर्व। नाम से ही पता चल रहा है किसको सप्लाई करेगी? पेक्टोरलिस मेजर या माइनर मसल को। ठीक है, और मैंने मसल में आपको पहले ही बताया था कि लेटरल वाली किसको सप्लाई करती है और मीडियल वाली किसको सप्लाई करती है, तो आप जाइए और जाके वो वीडियो देखिए। सेकेंड मसल इज M से मस्क्यूलोक्यूटेनियस मसल। मस्क्यूलोक्यूटेनियस मसल, okay, this is the most important muscle, musculocutaneous nerve, I am so sorry, musculocutaneous nerve, this is the most important nerve of arm or brachium. Okay, third one is L, which is also means lateral root of medial nerve, lateral root of medial nerve. Okay, नाउ सेकेंड कॉर्ड इज़ मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड को आप कैसे लिख सकते हैं? चार बार मीडियल मीन्स M से स्टार्ट हो रही है तो चार बार M लिखिए एंड लास्ट में U लिखिए। M इसका निमोनिक है, चार बार M लास्ट में U। फर्स्ट M का मतलब है मीडियल पेक्टोरल नर्व। अभी हमने ऊपर पढ़ी लेटरल पेक्टोरल नर्व, तो उसका दूसरा पार्ट भी होगा मीडियल पेक्टोरल नर्व। मीडियल पेक्टोरल नर्व जो कि दोनों आगे जाके हमारी क्या बनाएंगी? प्रॉपर पेक्टोरल नर्व, मतलब एक ही, दोनों मिलकर आगे एक पेक्टोरल नर्व बनाती हैं। ठीक है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, लेटरल और मीडियल। सेकंड मीडियल का मतलब होता है मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। अभी हमने ऊपर पढ़ा, एक रूट होती है मीडियल नर्व की, लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व। सेकंड रूट होती है मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। ये दोनों आगे जाके क्या बनाएंगे? मीडियल नर्व। ओके, तीसरी M का मतलब होता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, नाम से ही पता चल रहा है आर्म को सप्लाई करेगी। क्यूटेनियस मतलब अपर रीजन को, और यू कैन से सुपरफिशियल रीजन को। सुपरफिशियल मतलब जो स्किन को सप्लाई करेंगे। आर्म की स्किन को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। फोर्थ M का मतलब होता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। यह हमारी स्किन को सप्लाई करेगी, फोर आर्म की स्किन को। ओके, अल्नर का मतलब U से होता है हमारा अल्नर नर्व। ओके, और वन मोर थिंग, इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है ब्रेकियल प्लेक्सस में वो होता है रूट वैल्यूज़। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड बच्चे रूट वैल्यूज़ याद करते नहीं हैं, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं अटेंड कर पाते और वो उसे छोड़ कर आना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। लेटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू मैंने आपको बताई क्या क्या जुड़ रही है, C5, C6, C7, तो इसकी रूट वैल्यू होगी C5, C6, C7। अब इसके अंदर की जितनी भी ब्रांचेज होती हैं उन सबकी नर्व की ब्रांचेस की रूट वैल्यू क्या होगी? C5, C6 एंड C7। हमने पढ़ी अभी मीडियल कॉर्ड में हमारी चार M से शुरू हो रही है, एक U से। इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे कि M से हमारी शुरू हो रही है तो M C8 और T1 रूट वैल्यू है हमारी एक M की, तो चारों की सेम होगी, C8 T1 C8 T1 C8 T1। ठीक है, और लास्ट वाली में एक और रूट ज्वाइन हो जाती है जिसको बोलते हैं C7। ओके, C7 C8 T1 इज़ द रूट वैल्यू ऑफ अल्नर नर्व। अब हमारी लास्ट जो कॉर्ड बचती है डैट इज़ पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारी ब्रांचेस होती हैं, 5 ब्रांचेस होती हैं, जिसको हम निमोनिक के तौर पे याद कर सकते हैं अल्नर।
डोंट कन्फ्यूज़ कि अल्नर यहाँ है तो अल्नर इन्हीं में से कोई सी होगी, नहीं। अल्नर हमारी नर्व किसकी ब्रांच है, मीडियल कॉर्ड की, और पोस्टीरियर कॉर्ड में सिर्फ निमोनिक है अल्नर। अल्नर का फर्स्ट यू का मतलब है अपर सब स्कैपुलर नर्व, अपर सब स्कैपुलर नर्व। एल का मतलब है लोअर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व। एन का मतलब है नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई। लैटिसिमस डॉर्साई इज अ मसल which is present on the back or inferior angle of the scapula. You can also see my previous video of scapula, you will get that there. Okay, ए से होती है हमारी एक्सेलरी नर्व, एक्सेलरी नर्व। और वन मोर थिंग, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई का नाम होता है थोरैकोडोर्सल नर्व। क्या नाम होता है, थोरैकोडोर्सल नर्व। एंड नर्व टू सेरेटस एंटीरियर का क्या नाम होता है, मैंने इस वीडियो में बताया है, उसको आप कमेंट डाउन कीजिए कि नर्व टू सेरेटस एंटीरियर का नाम क्या होता है। ओके, आर से हमारी होती है रेडियल नर्व। अब हमने पांचों नर्व पढ़ लिए, अब इसकी रूट वैल्यू क्या होती है, इसमें भी सेम होता है, कुछ कुछ सेम होते हैं, कुछ कुछ नहीं होती। पहले आप क्या कीजिए, अल्नर को लिख लीजिए, उसके बाद इसको याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। C5 C6 लिखिए 3 के आगे, ठीक है, पहले 2 के आगे, फिर 1 छोड़ दिया, फिर C5 C6। रेडियल नर्व जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज़ द थिकेस्ट ब्रांच, ओके, थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। क्यों थिकेस्ट ब्रांच है, बिकॉज इसके अंदर सारी की सारी रूट्स प्रेजेंट होती है। C5 से T1 तक हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस फॉर्म होता है, जिसमें से सारी की सारी रूट्स हमारी रेडियल नर्व में प्रेजेंट होती है। तो हमें 3 का पता चल गया, 1 2 3, C5 C6 तीनों में सेम है, ठीक है, और लास्ट वाली का पता चल गया, बची हमारी बीच वाली। बीच वाली में क्या होता है, C7 C8 और C6 होती है, ठीक है। नो C5 रूट विल कम एंड नो T1 रूट विल कम हियर। ओके गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि कौन, जितनी भी हमने कॉर्ड्स पढ़ी हैं या नर्व्स पढ़ी हैं, वो आगे जाके किस किस मसल को सप्लाई करती हैं। ओके, कुछ का तो उनके नाम में ही पता चल जाएगा कि किस मसल को सप्लाई कर रही है, कुछ कहाँ पे थोड़ा याद करना पड़ेगा। फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटरल कॉर्ड की मसल्स को, सॉरी नर्व को। आई एम सो सॉरी, मैं बार बार मसल बोल रही हूँ, दिस इज अ स्लिप ऑफ टंग, सो डोंट माइंड प्लीज़। ओके, तो लेटरल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं वो हैं L, M एंड L। लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, लेटरल पेक्टोरल नर्व नाम से ही पता चल रहा है किसको सप्लाई करेगी, पेक्टोरलिस मेजर, सिर्फ पेक्टोरलिस मेजर को। हेयर ऑल्सो आई क्लियरली मेंशन यू कि माइनर को नहीं करती है। ओके, माइनर को सिर्फ मीडियल कॉर्ड मीडियल पेक्टोरल नर्व जो है वो सप्लाई करती है। लेटरल पेक्टोरल नर्व हमारी पेक्टोरलिस मेजर माइनर को सप्लाई नहीं करती है। ओके, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हमारी बेसिकली आर्म की नर्व होती है, ठीक है, ये सप्लाई करते हैं BBC। BBC पता है इन तीनों मसल्स को सप्लाई करेगी। क्या है ये BBC? B इज इक्वल टू बाइसेप्स। बाइसेप्स ब्रेकाई हमारी आर्म की मसल होती है, जिसको हमारी कौन सी नर्व सप्लाई करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस। सेकंड B का मतलब है ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस मसल को भी कौन सी सप्लाई करते हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। C से हमारा है कोरेकोब्रेकियालिस। ये तीनों की तीनों हमारी आर्म की मसल है, जिसको कौन सप्लाई कर रहा है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। लास्ट नर्व ऑफ द लेटरल कॉर्ड इज लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये अभी अकेले किसी को सप्लाई नहीं करती है, ये ज्वाइन करेगी मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व के साथ और मीडियन नर्व बनाएगी। वो मीडियन नर्व जाके आगे किसको सप्लाई करेगी, मसल्स को सप्लाई करेगी। ओके, सो नेक्स्ट अब आते हैं मीडियल कॉर्ड के ऊपर। मीडियल कॉर्ड पे मैंने निमोनिक बताया था, 4 बार M और U। फर्स्ट M का मतलब है मीडियल पेक्टोरल नर्व। मीडियल पेक्टोरल नर्व नाम सजेस्ट कर रहा है किसको करेगी, पेक्टोरलिस मेजर को और माइनर, ये दोनों को करती है। एंड लेटरल वाली सिर्फ किसको करती है, पेक्टोरलिस मेजर को, माइनर को नहीं करती है। सेकेंड M से मतलब है हमारा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। लेटरल ने भी किसी को सप्लाई नहीं करा, मीडियल भी किसी को सप्लाई नहीं करेगी, दोनों पहले एक साथ मिलके एक नर्व बनाते हैं जिसको बोलते हैं मीडियन नर्व। क्या बोलते हैं, मीडियन नर्व। और ये वाली नर्व आगे जाके किसको सप्लाई करेगी, मसल्स को सप्लाई करेगी। थर्ड M से हमारा मतलब होता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। क्यूटेनियस मतलब कि स्किन में प्रेजेंट है, तो हमारी किस काम आएगी, सेंसरी की काम आएगी, कि बाहर से भी कोई भी हमें मतलब स्टिमुलाई मिलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन चुभाया, तो कौन सी नर्व लेके जा रही है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। सॉरी, आर्म है तो आर्म पे अगर मैंने कुछ भी चुभाया या कुछ भी स्टिमुलाई मिलता है तो कौन लेके जाएगी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। सेंसरी इम्पल्स जाते होती है इसकी। फोर्थ होती है हमारी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। फोरआर्म इज दिस। ओके, सो यहाँ पे कोई भी स्टिमुलाई आएगा क्यूटेनियस स्किन के ऊपर तो कौन सप्लाई करेगी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। द लास्ट वन इज अल्नर नर्व। अल्नर नर्व जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारी हैंड की बहुत सारे मसल्स को सप्लाई करते हैं और फोरआर्म की भी।
1.5 मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। 15 इंट्रिंसिक मसल ऑफ पाम, पाम में जो इतनी सी पाम आपको दिख रही है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होती है अपर लिम्ब के अंदर। ओके, सो 15 इंट्रिंसिक मसल ऑफ पाम को कौन सप्लाई करेगा? अल्नर नर्व। यह हम आगे जाके जब हम आर्म, फोर आर्म और हैंड के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस किस मसल को कौन सप्लाई करती है? अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ओके, सो लास्ट कॉर्ड इज पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड की हमारी ब्रांचेज होती है अल्नर। याद करने का निमोनिक था ये अल्नर। फर्स्ट वन इज अपर सबस्कैपुलर नर्व, नाम से सजेस्ट हो रहा है, सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करेगी। सबस्कैपुलरिस हमारी स्कैपुला की मसल होती है जो कि हमारी प्रेजेंट होती है सबस्कैपुलर फोसा पे। ओके, सेकेंड वन इज लोअर सबस्कैपुलर नर्व, ये हमारी सप्लाई करते हैं टेरिस मेजर को। डोंट कंफ्यूज हेयर कि सबस्कैपुलर है तो सबस्कैपुलरिस को ही सप्लाई करेगी, नहीं, लोअर वाली किसको सप्लाई करते हैं? टेरिस मेजर को। थर्ड आती है हमारी नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई। आपको इसका नाम कमेंट सेशन में भी बताना है मेरे को, सेक्शन में, एंड इसका नाम मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। नो, आई विल नॉट रिपीट, आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैंने इस वीडियो में बीच में नाम लिया है इस नर्व का। ओके, ये सप्लाई करती है, नेम ही सजेस्ट कर रहा है किसको सप्लाई करेगी? लैटिसिमस डॉर्साई मसल को। ओके, फोर्थ वन इज एक्सिलरी नर्व। दिस इज ऑल्सो अ रियली इंपॉर्टेंट नर्व एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सिला। ओके, आई हैव teach you axilla. If you didn't read or didn't see my video, you can link ऊपर पॉपअप होगा, आप जाके देख सकते हैं एक्सिला की वीडियो। ओके, सो एक्सिलरी नर्व जो है एक्सिला के पार्ट में आती है। ओके, एक्सिला से जो भी कंटेंट पास हो रहा है उसका कंटेंट है एक एक्सिलरी नर्व जो कि हमारी दो मसल को सप्लाई करता है, डेल्टॉइड एंड टेरिस माइनर। डेल्टॉइड एंड टेरिस माइनर। लास्ट नर्व इज रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो है थिकेस्ट ब्रांच होती है। रेडियल नर्व मोस्टली हमारी पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म पे जितनी मसल्स होती है, वैसे पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म पे एक ही मसल होती है, उसको जाके सप्लाई करती है, विच इज़ ट्राइसेप। ओके, ट्राइसेप इज द पोस्टीरियर मसल ऑफ आर्म। ओके, उसको सप्लाई करती है। एंड 12 मसल ऑफ बैक ऑफ फोर आर्म, 12 मसल जो पोस्टीरियर साइड ऑफ फोर आर्म होती है उसकी 12 मसल्स को ये सप्लाई करती है हमारी रेडियल नर्व। ओके, रेडियल नर्व बेसिकली हमारी जो है पोस्टीरियर साइड को ही सप्लाई करेगी, इसका एंटीरियर से कोई रिश्ता नहीं है अभी तक। ओके, सो 3 नर्व आर ऑल्सो हेयर जो हमारी डायरेक्ट किससे निकल रही थी? रूट से निकल रही थी। पहली आती है हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये हमारी निकलती है अपर ट्रंक से। किससे निकलती है? अपर ट्रंक से हमारी ये नर्व निकलती है, ये हमारी जाके सप्लाई करेगी सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल ऑफ स्कैपुला। ओके, सेकेंड वन इज नर्व टू रोम्बॉइड डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ये हमारी निकल रही थी डायरेक्ट फ्रॉम द रूट, जिसका C5 रूट से निकलती है, इसकी रूट वैल्यू है C5। ओके, और ये नेम ही सजेस्ट कर रहा है किसको सप्लाई करेगी? रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर को। ओके, थर्ड वन इज थोरैकोडोर्सल नर्व जो कि हमारी किसको सप्लाई करती है? लैटिसिमस डॉर्साई को। एंड ये कहाँ से निकलती है हमारी? थोरैकोडोर्सल नर्व। दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस I have just now I have told you this is the part of posterior cord of the brachial plexus. Okay, one more nerve is here, nerve to serratus anterior which is also known as the long thoracic nerve. long thoracic nerve जो है serratus anterior को सप्लाई करती है और वो हमारी कहाँ से निकलती है? रूट वैल्यू जिसकी है C5, C6, C7 रूट से निकलती है। I have told you in the starting also. So please this is the end of this video. I have told you wait a minute, I have one diagram also to show you so you can clearly understand this. This is the brachial plexus diagram. Okay, so yeah, this is the chest region, C4, C5, C6, C7, C8 or T1. Okay, C8 is missing here, let me write C8. Okay, C5 से लेके T1 तक हमारी नर्व्स निकल रही हैं जो आगे जाके हमारी ये क्लेविकल है, क्लेविकल को क्रॉस करती है, फिर एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट के ऊपर से क्रॉस करती है, फिर हमारी एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट के जैसे जैसे नेम होता है, जैसे पोस्टीरियर पार्ट है तो पोस्टीरियर को पोस्टीरियर कॉर्ड करेगी, ऐसे ऐसे करके पास होती है। ओके, एंड आगे जाके इसकी ब्रांचेस जो है वो हमारी कहाँ होती है? अपर लिम्ब में प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो दिस इज़ वन डायग्राम ऑल्सो। दिस इज C4, C5, C6, C7, C8, T1. डोंट कन्फ्यूज है, C4 और T2 जस्ट शो ऑफ के लिए है, यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है। C5 और C6 दोनों मिलकर हमारे बनाते हैं अपर ट्रंक और सुपीरियर ट्रंक, जो कि आगे जाके हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच देता है। एंटीरियर क्या बोलते हैं? एंटीरियर ब्रांच ऑफ
सॉरी एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड द मिडल ट्रंक विल फॉर्म लेटरल कॉर्ड, वो जाके आगे किसको सप्लाई करती है। और वन मोर थिंग हेयर, जो लेटरल कॉर्ड है वो आगे जाके एक ही जो मतलब मेन जो ब्रांच है जो उसके आगे जाके निकलेगी वो है मस्क्यूलोक्यूटेनियस ब्रांच। ओके, क्या है? मस्क्यूलोक्यूटेनियस ब्रांच। सेकंड होता है हमारा C7। C7 से हमारी इकलौती एक ट्रंक बनती है जिसको बोलते हैं मिडल ट्रंक। मिडल ट्रंक जो है इसके आगे एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन होता है। एंटीरियर तो हमारा ऊपर लेटरल कॉर्ड में चला गया, पोस्टीरियर हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड में चला जाएगा। ठीक है, तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो मिलकर हमारी क्या बनेगी? पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड की हमारी ब्रांचेस होती है 5। ओके, सो वो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। तीसरी होती है हमारी C8 और C8 और T1। C8 और T1 हमारी बनाती है लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक आगे जाके इसकी जो मिडल ब्रांच बचती है उससे क्या बनता है? मिडल कॉर्ड बनता है जो कि आगे जाके अल्नर में डिवाइड हो जाता है। ओके, सो या दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. I hope you like this video. If you like this video, please do like this video, subscribe my channel and comment me down if you need something or you have any suggestion for this video. Okay, and share to your friends also. सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और कोरोना को प्लीज़ सीरियसली लीजिए, मास्क पहनिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके गाइस, थैंक यू।